Students, today we will discuss about cell membrane or plasma membrane or plasma lemma of prokaryotic cell or your bacterial cell. In case of prokaryotic cell or bacterial cell, the cell membrane or plasma membrane and it is otherwise known as plasma lemma. ठीक है, plasma lemma, cell membrane or plasma membrane. It is inner to the cell wall. Okay, means the outer wall is your cell wall and inner to the cell wall another layer is present and this layer is called your cell membrane, plasma membrane or plasma lemma. That's why it is said that the cell membrane is inner to the cell wall, means it is present or lie beneath the cell wall. Okay, then the cell wall is generally composed of cell membrane is generally composed of carbohydrates, lipids and proteins. These are the major components. Okay, the major components of cell membrane are, that is your carbohydrates, lipids and proteins, and some amount of enzymes and vitamins are also found in cell membrane. These are the major component. Major component means it constitute most part of the cell membrane, means the percentage of carbohydrate, lipid and protein is more. That's why these are the major components. And some amount of enzymes and vitamins are also found in the cell membrane, and that constitute, means this and this constitute the cell membrane of prokaryotic cell or your bacterial cell. Okay, what happens? The lipid molecules which are found in your cell membrane or plasma membrane form a bilayer. Okay, bilayer, bi means two layers को फॉर्मेशन करेगा, दो लेयर. That's why it is called bilayer और लिपिड bilayer. फर्स्ट लिपिड को जाते हैं, उसके बाद इसको जाएंगे, इसके बाद इसको जाएंगे. ठीक है. The lipids which are found in your cell membrane or plasma membrane or prokaryotic or your bacterial cell is present in the form of or found in the form of bilayer form. Okay, that's why it is called lipid bilayer. ठीक है. If we consider about a lipid bilayer, it constitutes the basic monomers or the basic units. These are called phospholipids. ठीक है. फर्स्ट क्या हुआ, ये वाला आ गया, लिपिड आ गया, उसके बाद सब जाएंगे, उसको देखेंगे. लिपिड आर फाउंड और प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ bilayer and this is called lipid bilayer. Okay, the lipid bilayer constitute the basic subunits or basic unit of lipid bilayer or the membrane. These are called phospholipids. And the phospholipids are amphipathic in nature. Amphipathic, ठीक से याद रखना ये टर्म, amphipathic. एम्फी का मतलब क्या बोले थे अभी याद करो. एम्फीट्राइकस एक था टर्म, फ्लैजेला में था, उसमें क्या था, एम्फी मीन्स बोथ. तो यहाँ पर क्या होता है, क्या होगा, amphipathic means it constitutes or contains both polar and non-polar group. मतलब उसके पास पोलर ग्रुप भी होगा एंड नॉन पोलर ग्रुप भी उसके पास होगा. And the substance which contains both polar and non-polar group, these are called amphipathic substance और amphipathic molecule. मतलब जिस सब्सटेंस और जिस मॉलिक्यूल के पास आपका होगा क्या, मतलब पोलर ग्रुप भी होगा और नॉन पोलर ग्रुप भी होगा, उसी टाइप का जो सब्सटेंस है और मॉलिक्यूल है उसको क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, क्योंकि उसके पास पोलर ग्रुप भी है और नॉन पोलर ग्रुप भी है. ठीक है. किसके पास है, आपका फॉस्फोलिपिड के पास. उसी फॉस्फोलिपिड को लेके बनेगा क्या, आपका लिपिड बाइलर. And these lipids are the major components of a cell membrane or plasma membrane or
plasma lemma of prokaryotic or your bacterial cell. Okay, if we consider an individual phospholipid molecule, मतलब हम क्या करेंगे अभी देखेंगे, मतलब ये जो फॉस्फोलिपिड जो है, फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फोलिपिड का इंडिविजुअल कंपोनेंट देखेंगे, मतलब एक ही फॉस्फोलिपिड को देखेंगे. इफ यू कंसीडर अबाउट an individual phospholipid molecule, it consists of one head and two tails. ठीक है, मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट जो होगा, इंडिविजुअल कंपोनेंट और इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड जो होता है उसके पास दो चीज होता है और दो पार्ट होता है. क्या होता है? एक होता है आपका हेड पार्ट एक होता है और एक टेल पार्ट होता है. ठीक है, मतलब हेड पार्ट कितना होगा? एक ही हेड पार्ट होता है और टेल दो होता है यहाँ पर. ठीक है, मतलब सपोज ये वाला देख लो, ये सपोज ये वाला है हेड पार्ट और ये वाला है आपका क्या? टेल पार्ट. ठीक है, दो टेल हो गए यहाँ पर, मगर आपके पास हेड एक ही होगा. मतलब किसका? अगर इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड का. अगर दिखेंगे तो किससे दिखेगा वो? देखो सपोज दिस इज योर फॉस्फोलिपिड्स, मतलब वन इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड. This is your head part and this is your tail part. मतलब वन हेड रहा और दो टेल रहा है यहाँ पर. ये जो हेड जो है, हेड इज पोलर एंड टेल्स आर नॉन पोलर इन नेचर. मतलब ये जो हेड जो है ये वाला है पोलर हेड आपका, पोलर हेड. ये जो टेल जो है ये वाला क्या है आपका? नॉन पोलर. मतलब पोलर और नॉन पोलर क्या है एक्चुअली? क्या है एक्चुअली? द पोलर्स आर वाटर लविंग सब्सटेंसेस. वाटर लविंग सब्सटेंसेस मीन्स द पोलर हेड कैन मेक बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल और इन aqueous medium. aqueous medium मीन्स आपका aquatic medium. मतलब ये जो पोलर हेड जो है और हेड जो है जनरली हेड आपका क्या है? पोलर है. मतलब ये जो हेड है आपके वाटर के साथ कुछ बॉन्ड कर पाएगा, इसीलिए उसको कहते हैं क्या? वाटर लविंग और पोलर मॉलिक्यूल्स. दीज आर योर हेड्स. ठीक है, बट इन केस ऑफ टेल्स दीज आर नॉन पोलर सब्सटेंसेस और नॉन पोलर ग्रुप्स एंड दीज आर वाटर हेटिंग ग्रुप्स. वाटर हेटिंग ग्रुप्स में मीन्स क्या है? उसका मतलब यही है कि मतलब आपका जो है क्या टेल जो है मतलब वाटर के साथ वो बॉन्ड नहीं कर पाएगा. मतलब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन वहाँ पर होगा, हाइड्रोफोबिक. ठीक है, देखेंगे और दो टर्म आएगा और इसके बदले मतलब क्या पोलर और नॉन पोलर के बदले नॉन पोलर के लिए और एक टर्म होगा, पोलर के लिए और एक टर्म होगा. देखेंगे क्या है. मतलब पोलर क्या हुआ आपका? वाटर लविंग, मतलब वाटर के साथ वो बॉन्ड कर पाएगा. नॉन पोलर जो है वो वाटर के साथ बॉन्ड नहीं कर पाएगा. ठीक है, ये वाला आ गया. एंड द पोलर ग्रुप और द पोलर प्रॉपर्टी इज constituted in head group and non polar is in your tail. मतलब पोलर जो है आपका हेड ग्रुप का कैरेक्टर है पोलर और टेल का क्या है? नॉन पोलर. ठीक है, और अगर और एक चीज देखेंगे, द पोलर आर आल्सो नोन एज हाइड्रोफिलिक. पोलर को आप हाइड्रोफिलिक बोल सकते हो. हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग. ओके, वाटर लविंग मतलब वाटर लविंग सब्सटेंस जो रहा उसको बोलते हैं क्या? पोलर मॉलिक्यूल और पोलर सब्सटेंस. व्हेयरएज इन केस ऑफ नॉन पोलर दीज आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक. फोबिक मीन्स, फोबिया मीन्स क्या है आपका? फियर. तो वाटर को मतलब क्या? वो फियर होगा वहां पर. दिस मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स योर हेटिंग. Here hydro means water and philic means love. ये वाला हो गया. मतलब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं the head group of individual phospholipid is polar और hydrophilic. ठीक है, polar और hydrophilic. Whereas the tails are non-polar और hydrophobic. मतलब non-polar भी होगा और non-polar को आप बोल रहे हो क्या? मतलब क्या बोल सकते हो?
हाइड्रोफोबिक बोल सकते हो। ये जो पोलर जो है, पोलर का और एक नाम है, उसका नाम क्या है आपका हाइड्रोफिलिक। ठीक है, देखो नेक्स्ट आता है क्या, ये वाला गया क्या आता है लिपिड। नेक्स्ट आता है जो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है वहां पर कि कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर क्या हुआ देखो, lipids are present in the form of bilayer, that is called lipid bilayer, and the lipid bilayer consists of your phospholipid molecules and these are arranged in two layers, that's why it is called lipid bilayer। ठीक है, और इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड हम दिखेंगे यहाँ पर, ये वाला हेड रहा, ये वाला टेल रहा। हेड है क्या हाइड्रोफिलिक और पोलर, ये वाला हुआ क्या नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक। यहाँ पर क्या होता है इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, ये जो ओलिगोसैकेराइड जो है, ओलिगोसैकेराइड फॉर्म में वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, सॉरी आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो उसी फॉर्म में वो प्रेजेंट रहेगा कहाँ पर आपका सेल मेम्ब्रेन में। किस फॉर्म में आपका ओलिगोसैकेराइड, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है थोड़ा देखना क्या है ओलिगोसैकेराइड। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, इट कंटेन्स ओनली 3 to 10 ग्लूकोज सॉल्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या था दो लेयर बनेगा, बहुत सारे फॉस्फोलिपिड हो गए, बहुत सारे मतलब मोर देन 1000 और 10,000 और 1 लाख और 1 करोड़। ऐसा भी हो सकता है किसमें आपका फॉस्फोलिपिड में और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है these are found or present in the form of oligosaccharide chains and the oligosaccharides or oligosaccharide chains are those carbohydrates which contains only 3 to 10 glucose units। Suppose ठीक है, यहाँ पर कितना ग्लूकोज यूनिट है 1 2 3 4 5 ये वाला हो गया, और ये किस में आ गया 3 to 10 में आ गया। तो 3 to 10 के अंदर उसके पास क्या होगा ग्लूकोज होगा, और जिस जब ये 3 to 10 ग्लूकोज यूनिट और ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है जब ये एक के साथ एक बॉन्ड करेगा, उसी टाइप का जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो है उसको बोलते हैं क्या ओलिगोसैकेराइड चेन। ठीक है, क्या क्या बॉन्ड है देखेंगे उसमें। एक ग्लूकोज यूनिट जब दूसरे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बॉन्ड करेगा, यहाँ पर होगा क्या आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, याद रखना ये वाला आगे क्या आएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसका भी टाइप है, मतलब वेराइटी है उसका क्या है, तो ये यहाँ पर हो सकता है अल्फा 1,4 हो सकता है, अल्फा 1,3 हो सकता है, बीटा 1,4 हो सकता है, बीटा 1,6 भी हो सकता है। वो वाला क्या है वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि अल्फा क्यों बोल रहे हो बीटा क्यों बोल रहे हो, ये वाला और बाद में लिखेंगे। लेकिन यहाँ तक पता चलना चाहिए एक ग्लूकोज यूनिट जब दूसरे ग्लूकोज यूनिट से लगेगा तो उसके बीच में जो बॉन्ड है उसका नाम है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। याद रखना अच्छे से ये वाला। ठीक है, अभी चलेंगे आपका नेक्स्ट की जो कार्बोहाइड्रेट, ये वाला बाद में देखेंगे, बाद में मतलब जब जो ये शुरू होगा क्या आपका यूकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन जब दिखेंगे तब देखेंगे। ये वाला मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल्स में बाद में आएगा अच्छे से। अभी देखो प्रोटीन वो क्या होता है, द प्रोटीन्स व्हिच आर फाउंड इन योर सेल मेम्ब्रेन आर ऑफ टू टाइप्स जनरली। द प्रोटीन्स व्हिच आर फाउंड इन योर सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक और योर बैक्टीरियल सेल इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल, ठीक है, वन इज इंटीग्रल प्रोटीन and another is your peripheral protein, and these are categorized on the basis of their position on the cell membrane। मतलब सेल मेम्ब्रेन में वो कहाँ पर है उसको देखते हुए इसको कैटेगराइज किया गया है। किसको आपका प्रोटीन को, मतलब प्रोटीन्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टू फॉर्म, दैट इज वन इज टू फॉर्म्स, दैट इज वन इज योर इंटीग्रल प्रोटीन and second is your peripheral protein। Integral means these are inner to the cell wall, means cell inner to the cell membrane। जो सेल मेम्ब्रेन जो होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सपोज ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो रहेगा कौन सा आपका इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, सपोज ये वाला ले लो आपका सेल मेम्ब्रेन, सपोज सेल मेम्ब्रेन क्या होता है इसके अंदर वो रहेगा कौन सा, उसके अंदर मतलब पूरा अंदर जाएगा, अंदर जब रहेगा वो एक प्रोटीन उसको बोलते हैं क्या integral protein। and when these proteins are present on outer side or surface of the cell membrane, these are called peripheral proteins। देखो कैसे होगा, सपोज ये वाला देखो
ये वाला आपका सेल मेम्ब्रेन, सपोज ये वाला एक प्रोटीन है, मतलब ये कहाँ रहेगा, कहाँ मतलब क्या कहाँ है अभी देखो तो ये वाला क्या है आपका बाहर है और सरफेस में है। जब सरफेस में आपका रहेगा तो प्रोटीन रहेगा और उसका पेरिफेरल साइड जो जहाँ पर है अगर वहाँ पर रहेगा तो वो वाला जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं क्या आपका पेरिफेरल प्रोटीन। अगर वो अंदर घुस के रहेगा ऐसे, मतलब ऐसे ही रहेगा, ऐसे मतलब अंदर घुस के रहेगा तो वो वाला जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं क्या आपका इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, और जो डिटेल्स है उसका, क्योंकि ये वाला खत्म नहीं हुआ है, ये वाला जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि आपका इसमें जो है किसमें एनसीईआरटी जो है उसमें बहुत कम दिया है, कम दिया मतलब सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। तो ये थोड़ा मतलब क्या याद रखना है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो होता है शुरू से ही शुरू होगा क्या सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आएगा। सेल वॉल को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन जो आएगा इसमें सब चीज़ ठीक से आ जाएंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों सेम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही इस क्लास का, थैंक यू।